Hello friends, welcome back to my channel. So till now we have discussed about linear PDEs, some classifications of first order linear PDEs, quasi-linear PDEs and the solution by Lagrange's method, how to find a general solution for the quasi-linear PDEs. Now today I'll switch to non-linear PDEs of order 1. First you need to know about the types of solutions we get for non-linear PDEs. Linear PDEs में हमें जनरल सॉल्यूशन मिलता था. See the word here, integral, complete integral or solution. Integral or solution is the same word, means the meaning is same. You can say it a complete integral or a complete solution, and the only difference here is that we get this type of solutions for non-linear PDEs. Quasi-linear PDE में हमें general solution मिला था for the Lagrange's equation. Now for non-linear PDEs, I have discussed about the types and about order. I have told you order 1 means what? This type of equations. It is of order 1 and degree 2. Okay. इस टाइप की इक्वेशंस क्या है? ये ऑर्डर 1 है एंड डिग्री 2 है, तो इट शुड बी ऑफ ऑर्डर 1 बट ऑफ एनी डिग्री. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन लीनियर पीडीज ऑफ ऑर्डर 1. नाउ फर्स्ट कम टू द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कंप्लीट इंटीग्रल और सॉल्यूशन. हाउ टू find a complete integral or how to recognize whether the given solution is complete integral or not for a given PDE. Now for the complete integral, consider a relation phi x y z a b equal to 0. Okay. Here z is a dependent variable dependent on x and y. X and y are independent variables and a and b are the arbitrary constants. Okay. Now differentiate partially with respect to x and y. What we will get? Del phi by del x plus del phi by del z. Since z is a function of x and y, तो z को भी हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे. पहला फंक्शन हुआ, उसके बाद दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दिस इक्वल टू 0. और ये क्या है? p. मैंने नोटेशन बताई थी, p del z by del x, q del z by del y. We will use this notation everywhere, so please remember it. Okay. Now with respect to y, in the similar manner, del z by del y equal to 0. So from these two equations we will eliminate the constants a and b from this equation 1. Eliminating the constants, we will get a equation of the form x y z pq equal to 0, which is a non-linear PDE of order 1. This is the PDE required. Okay. So when this equation 1 will be called a complete integral of equation 2, you have to check one condition for this. Suppose this relation 1 is complete integral of equation 2, complete integral or solution of equation 2, if the rank of the matrix M is 2. And what is the matrix M here? M is given by phi A, phi xa, phi xya, then phi B, phi ya and phi yb. Okay, this is the matrix M. अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है, then we say that this relation is a complete integral or complete solution of the PDE of order 1 given by 2. See, this is the matrix where phi a means del phi by del a partially with respect to a. phi xa का मतलब क्या होगा? del phi by del x del a, and similarly you get the other terms. ठीक है.
कोई भी रिलेशन है कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, दो ही कॉन्स्टेंट्स है, देन ऑल्सो वी कैन से इट्स अ कंप्लीट इंटीग्रल, बट दिस कंडीशन यू नीड टू चेक दिस कंडीशन ऑल्सो. अगर ये मैट्रिक्स का रैंक 2 आता है देन दिस इज़ अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस पीडी. ठीक है, ये तो बात हो गई कंप्लीट इंटीग्रल की. नेक्स्ट विल कम टू पर्टिकुलर. अगर हम पर्टिकुलर की बात करते हैं तो एज द नेम इंडिकेट्स हियर, particular means giving particular values to a and b. अगर relation 1 में if in equation 1 we put the particular values for a and b, then it is called a particular solution. Okay, particular solution means giving particular values to a and b. Third one is singular solution. Singular solution is important. Singular solution is envelope of two parameter family of surfaces. Two parameter family means we have to eliminate the constants a and b from this relation. Suppose this is a given PDE and it is a relation of it is a complete integral of equation 2, and if we eliminate from here constants a and b by differentiating partially with respect to a and b, find the envelope. Suppose in equation 1 we differentiate it partially with respect to a, putting it 0, and del phi by del b equal to 0, then eliminating the constants a and b gives the singular solution. सिंगुलर सॉल्यूशन का जो फॉर्म आएगा वो किस टाइप का होगा, g x y and z इक्वल टू 0, क्योंकि a और b हम लोग हटा दिए हैं. सिंगुलर सॉल्यूशन इज द एनवेलप ऑफ टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्फेसेस. एंड वन मोर कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड इट, सिंगुलर सॉल्यूशन must satisfy the given partial differential equation. This is the important condition. Means you have to check whether the solution is satisfying the given PDE or not. After finding the solution it should satisfy the given PDE. तो ये बात होगी सिंगुलर सॉल्यूशन की. नेक्स्ट इज जनरल इंटीग्रल और जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन हमने क्वासी लीनियर पीडी में फाइंड किया था बाय यूजिंग लैग्रांजेस मेथड. फॉर द नॉन लीनियर टाइप ऑफ पीडीज जनरल इंटीग्रल इज अ वन एनवेलप ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्फेसेस. जैसे हम लोग ने देखा कि सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्फेस का जो एनवेलप है वो सिंगुलर सॉल्यूशन है. बट इन केस ऑफ जनरल इंटीग्रल और जनरल सॉल्यूशन we write the one function in form of other. Okay, one function is written in the form of another, like b is written as a function of a, then b equal to phi a. We replace here b with phi a, then after eliminating the constant a from equation 3, that is del phi by del a equal to 0, okay, and eliminating the constant from constant a using, एक तो फाई इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे एंड सेकेंड कंडीशन इज डेल फाई बाई डेल ए इक्वल टू 0. ओके, यूजिंग दिस एंड दिस वी एलिमिनेट द कांस्टेंट एंड वट एवर वी गेट इज द एनवेलप ऑफ वन पैरामीटर फैमिली, दैट इज कॉल्ड द जनरल इंटीग्रल और जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडी पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय, सपोज इसमें भी क्या होगा, कोई कांस्टेंट नहीं होगा तो ये भी इस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म होगा. एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन शुड आल्सो सेटिस्फाई द गिवन पीडी.
जनरल सॉल्यूशन भी सेटिस्फाई करेगा पीडी को, satisfies the PD. Okay, so this is the thing about the types of solutions and how to find the solutions and what is the definition and process to get the solutions. I will tell you one by one, taking one example. I will tell you how to find the singular solution, general solution or complete solution for a PDE. Now first I will discuss one more topic, that is compatible systems of first order PDEs. अगर दो system given है तो how we check the compatibility of that two systems. Okay, and then after that I will tell you about Charpit's method, very famous method to solve the non-linear PDEs. Basically we use that Charpit methods to find the complete integral for the PDEs. Okay, now compatible systems for first order PDEs. सपोज अब दो PDE गिवन है, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस. These two systems are said to be compatible when solution of one satisfies is also a solution of the other. मतलब क्या है कि किसी एक का सॉल्यूशन जो होगा वो दूसरे इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा. देन दिस टू सिस्टम्स आर सेड टू बी compatible, are said to 1 and 2 are said to be compatible if solution of one is also a solution of the other. मतलब किसी भी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो दूसरे सॉल्यूशन अदर इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा. देन दिस टू सिस्टम्स आर सेड टू बी compatible and the conditions for the equations 1 and 2 to be compatible इसके दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट वन इज जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी शुड नॉट बी जीरो. मीन्स जैकोबियन ऑफ एफ एंड जी जीरो नहीं होना चाहिए. डेल ऑफ एफ जी बाई डेल ऑफ पी क्यू, दिस शुड नॉट बी ज़ीरो. ये नोट जैकोबियन, इसको जैकोबियन इसका कैसे होगा, एफ पी एफ क्यू जी पी जी क्यू. मीन्स पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पी एफ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू क्यू जी. ये हमारा ज़ीरो नहीं आना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन that needs to be compatible. And second one is dz equal to p dx plus q dy. this should be integrable. okay, ये इंटीग्रेबल हो और जैकोबियन ऑफ एफ एन जी ज़ीरो नहीं हो. अंडर दिस टू कंडीशंस इक्वेशंस 1 and 2 आर compatible. नाउ इसके इंटीग्रेबल होने की भी कंडीशन है. इसके इंटीग्रेबल होने की कंडीशन क्या है, डी जेड इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई. तो हम लोग डी जेड को कैसे लिखते हैं, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, वेर पी एंड क्यू आर गिवन बाय द आई टोल्ड यू अबाउट दिस. पी इज़ डेल जेड बाई डेल एक्स एंड क्यू इज़ डेल जेड बाई डेल वाई. ठीक है, अब इसके इंटीग्रेबल होने की कंडीशन क्या है, एफ जी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ एफ जी क्या होता है, डेल एफ जी बाई डेल एक्स पी प्लस पी डेल एफ जी बाई डेल जेड पी प्लस क्यू डेल एफ जी बाई डेल जेड क्यू प्लस डेल एफ पी बाई एफ जी बाई डेल ऑफ वाई क्यू. ये अगर ज़ीरो हो जाए देन दिस इज़ इंटीग्रेबल एंड दिस टू कंडीशंस are if these two conditions are satisfied then equation 2 and 1 and 2 are compatible. ये तो बात हो गई compatibility की. you should know, आप नोट डाउन कर सकते हैं ये सब चीज़. एंड नेक्स्ट आई विल प्रोसीड टू चारपीट्स मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. जैसे हमने लैग्रांजेस मेथड पढ़ा था तो उसमें लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस पढ़ा था. लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरह ही चारपीट्स मेथड में क्या होता है कि वी विल फॉर्म चारपीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, चारपीट्स मेथड.
Charpit's method is used to solve non-linear PDEs of order 1 to find the complete integral. Okay, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम लोग चारपीट्स मेथड का यूज़ करते हैं. और कंप्लीट सॉल्यूशन. सी, अगर कोई नॉन लीनियर पीडी गिवन है, दिस इज द पीडी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द solution using Charpit's method, then first write the Charpit's auxiliary equation. उसमें हम लोग Lagrange's auxiliary equation बनाते थे, इसमें Charpit's auxiliary equation बनाएंगे सिमिलर वे में. तो Charpit's auxiliary equation क्या होता है? dx by fp means partially differentiate partially with respect to f, dy by fq equal to dz by पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल टू माइनस डी पी बाई एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इक्वल टू डी एफ बाई ज़ीरो. मीन्स व्हाट इज़ द फंक्शन इज गिवन दिस. Okay, this is the Charpit's auxiliary equations. Using any two of the fractions, simple fractions, we need to find the solution like p x y z a equal to 0 and q x y z a equal to 0. Means we have to find the p and q using any suitable two fractions. ये जो भी हमने ऑक्सिलरी में फाइंड किया था ना, डी एक्स बाई और इक्वल टू डी वाई बाई इक्वल टू डी जेड बाई लिखते थे, फिर दो फ्रैक्शंस लेके हम उसका u एक्स वाई जेड इक्वल टू c1 और v एक्स वाई जेड इक्वल टू c2 फाइंड करते थे. इन द सिमिलर फैशन टेक एनी ऑफ द टू फ्रैक्शंस विच यू see is easy to simplify and then find these values, and after that we know dz equal to p dx plus q dy and it is integrable. Then put the values of p and q from here and integrate it, you get the solution in terms of z is equal to this, that is the relation f x y z ए बी इक्वल टू ज़ीरो टाइप. ठीक है, और यही तो कंप्लीट इंटीग्रल का फॉर्म है. इसी फॉर्म में हम कंप्लीट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये तो बात हो गई प्रोसेस की. इसका वर्किंग रूल क्या है? फर्स्ट यू नीड टू ट्रांसफ़र ऑल द टर्म्स टू द एल एच एस साइड. ओके, फर्स्ट ट्रांसफर ऑल द टर्म्स टू द एल एच एस साइड, देन फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशंस इन दिस फॉर्म. This is fz is del f by del z, fy del f by del y. In this form you write the auxiliary equation, then take any of the two fractions which you see is easy to solve and contain p and q, क्योंकि you have to find p and q for this dz equal to p dx plus q dy. After finding p and q, put in this form and then integrate it. Integrating you get the solution or complete integral for the इक्वेशन गिवन इक्वेशन. लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. चारपिट्स मेथड यूज़ करके ये कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है. जून 2015 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट इंटीग्रल्स ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय पी क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इसमें चार ऑप्शंस थे, उसमें से दो ऑप्शंस करेक्ट हैं. आई विल डिस्कस ओनली दिस टू. वो दो डिस्कार्ड हो जाएंगे, मैं लिखी नहीं हूँ. फर्स्ट सी द प्रोसेस व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ. पहले क्या करना है? यू हैव टू ट्रांसफ़र ऑल द टर्म्स टू द एल एच एस साइड. तो ये 1 आर एच एस में है. फर्स्ट यू नीड टू ट्रांसफ़र इट टू द एल एच एस. तो हमारा ये क्या हो गया? ये फंक्शन इस फॉर्म में है. ठीक है. नाउ सेकेंड यू हैव टू फॉर्म द चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन. चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? ये आप एक दो बार लिखेंगे एग्ज़ाम में, ये याद करना ज़रूरी है. इसको आप अच्छे से सही तरीके से रिमेंबर करें. पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल टू माइनस डी पी बाई एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल टू. एक और भी फॉर्म होता है कि बहुत कोई बुक में आप देखेंगे कि यहाँ माइनस नहीं यूज़ करके वो लोग इस पे माइनस यूज़ करते हैं. तो इट्स योर चॉइस. ये 2 टाइप के फॉर्म्स में लिखा जाता है. जैसे भी आपको याद हो, यू कैन डू एनी ऑफ द फॉर्म. ठीक है, यहाँ हम लोग ने लिख लिया. अब एफ पी मतलब क्या? एफ जो फंक्शन है ये पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू पी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है. तो सी पी इसमें है, इसको करेंगे तो क्यू एक्स होगा.
ठीक है। और फिर हम लोग dy बाई एफ क्यू कितना है 2yq, फिर dz बाई pf मीन्स pqx प्लस qf तो यही था 2yq स्क्वायर इक्वल टू माइनस dp बाई fx, मतलब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट pq एंड प्लस pfz। सी हियर देयर इज़ नो टर्म ऑफ z, यहाँ z नहीं है, इसका मतलब z के रिस्पेक्ट में कुछ नहीं है तो ज़ीरो हो गया। एंड फिर सिमिलरली फॉर dq fy मीन्स q स्क्वायर प्लस qfz ज़ीरो, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ज़ीरो होगा। तो ये अब हमें मिल गया, दिस इज़ अ चार पीरियड्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि टेक एनी टू सिंपल फ्रैक्शंस टू फाइंड p एंड q। अब इसमें देखिए dx के साथ x और q भी है, y के साथ y q दोनों है, तो इंटीग्रेशन इज़ नॉट दैट सिंपल। dz भी है तो उसमें भी z हमारा नहीं है। अब देखिए dp बाई पी क्यू एंड dq बाई क्यू स्क्वायर, इस दोनों में हमें बस p और q दिख रहा है और हमें चाहिए भी p और q, तो हम इस दोनों को अगर यूज़ करें माइनस dp बाई पी क्यू इक्वल टू माइनस dq बाई क्यू स्क्वायर, ठीक है। एक q यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ dp बाई p इक्वल टू dq बाई q, ये बचा। नाउ सी इट्स वेरी इजी टू इंटीग्रेट दिस टू फ्रैक्शंस। अगर इंटीग्रेट करते तो क्या मिलता है ln p इक्वल टू ln q एंड वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टेक इन द लॉग फॉर्म। अब क्या होगा p इक्वल टू ए क्यू। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस p इक्वल टू ए क्यू इन दिस इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ p और q इन टर्म्स ऑफ a। तो अब हम हमें p ए क्यू मिल गया है, तो इस इक्वेशन में जब हम p को ए क्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए क्यू स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। टेक क्यू स्क्वायर कॉमन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, क्यू स्क्वायर इज़ 1 बाई एक्स प्लस वाई एंड क्यू इज़ रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर एक्स प्लस वाई। अब हमें p क्या मिला, फिर अगर हम इसमें q पुट करते हैं तो a बाई एक्स प्लस वाई। नाउ आफ्टर दैट मैंने क्या बताया, dz क्या है p dx प्लस q dy। अब हमें क्या करना है, p और q की जो वैल्यूज़ मिली है उसको इसमें पुट करेंगे, dx प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स प्लस वाई dy, ठीक है। अब देखिए अगर इसको एलसीएम लेते हैं ऊपर क्या होगा, a dx प्लस dy बाई रूट ओवर एक्स प्लस वाई, ये क्या है d ऑफ ax प्लस वाई बाई रूट ओवर एक्स प्लस वाई। जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेट करना है, तो अगर dx बाई रूट एक्स होता है उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, उसी तरह से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 रूट ओवर एक्स प्लस वाई जेड, और dz की इंटीग्रेशन z हो गई, ठीक है। ये हमें क्या मिला इंटीग्रेशन, और वन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ b, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने b ले लिया। अब ये हमारा कंप्लीट इंटीग्रल आ गया, ठीक है। नाउ कम टू द ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या गिवन है, देखिए इस फॉर्म का हमें कुछ दिख रहा है, एक्स प्लस वाई है, b है, पर ये क्या है कि ये स्क्वायर फॉर्म में है और ये b इस साइड है, तो कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर b को उधर ले जाते हैं z के पास तो क्या होगा, z माइनस बी होगा, और ये क्या होगा, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट वी विल गेट, z माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स प्लस वाई मीन्स सेकेंड ऑप्शन। जो सेकेंड ऑप्शन मतलब क्वेश्चन पेपर में नहीं है, वो मैंने जस्ट लिखा, तो यहाँ जो सेकेंड ऑप्शन है वो मैच कर रहा है हमारे कंप्लीट इंटीग्रल से। सेकेंड इज़ द कंप्लीट इंटीग्रल वी फाइंड विद द यूज़ ऑफ चारपीट्स मेथड, ठीक है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द चारपीट्स मेथड इज सॉल्यूशंस हेयर आर नॉट यूनिक। चारपीट मेथड से आप जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो यूनिक नहीं होगा, इट कैन हैव मोर देन वन सॉल्यूशन। तो ये समझ में आया, आई एम इरेजिंग इट। नाउ कम टू द फर्स्ट
ऑप्शन, मैंने क्या बोला कि कोई भी चारपीट्स मेथड में सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता है, मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। और कंप्लीट इंटीग्रल अभी जब मैंने बताया तो उसमें मैंने क्या बताया था, एक चारपीट्स मेथड से हम कंप्लीट इंटीग्रल निकालते हैं, और एक क्या तरीका बताया था कि कोई भी फंक्शन फाई एक्स वाई जेड ए बी कंप्लीट इंटीग्रल कब होगा, पहली कंडीशन तो है कि उस सॉल्यूशन है अगर पीडी का तो वो पीडी को सेटिस्फाई करेगा। तो पहला आप चेक कर सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन गिवन है ये गिवन पीडी को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर आप पी क्यू निकालें, पी मतलब इसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड क्यू मतलब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे और इस इक्वेशन से निकाल के इसमें जब पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो। और एक चीज़ क्या है, अगर आप मैथमेटिकली उस मेथड से चेक करेंगे तो अभी मैंने क्या बताया कि जो भी मैट्रिक्स एम होगी, मैट्रिक्स मैंने क्या बताई थी, फाई ए, फाई एक्स ए, फाई वाई ए, फाई बी, फाई एक्स बी और फाई वाई बी, ये जो मैट्रिक्स होगी इसकी रैंक 2 होगी। तो ये जो फंक्शन है या सॉल्यूशन है वो क्या होगा, उसका कंप्लीट इंटीग्रल होगा। तो इसको अगर सॉल्यूशन होना है तो इससे आप इसकी मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स बनाएंगे मतलब यही आपका फॉर्म है जो भी है, इससे जब आप मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे उसके बाद उसकी रैंक देखेंगे तो वो रैंक आपको 2 मिलेगी। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 2 होती है तो हम क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन जो आया है फंक्शन ये वाला वो क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पीडी। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है एक तो फर्स्ट है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है एंड द सेकेंड थिंग इज द मैट्रिक्स फॉर्म यूजिंग दिस फंक्शन यू गेट द रैंक 2, सो इट इज़ अ कंप्लीट इंटीग्रल। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में और भी सेमीलिनियर इक्वेशंस में कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रॉब्लम है उसमें यूनिक सॉल्यूशन देखना है, वो सब भी एग्जाम से पूछा जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चारपीट्स मेथड फॉर नॉन लीनियर पीडीज। ओके, आई एम क्लोजिंग अप हियर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।